life processes chapter में you are having a practical that I also discussed in NCERT. So in NCERT there is a activity variegated leaf वाली, ठीक है? Variegated leaf वाली activity में you see that there is green leaves in some portion and there is chlorophyll is not there in other portion. That means the leaf is irregularly green. ठीक है, तो उसको शो करने के लिए कि ग्रीन वाले पत्तों पोर्शंस में लाइट के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस होती है और येलोइश पोर्शंस में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, ये एक्टिविटी हमें करनी है कि chlorophyll is necessary, light is necessary for photosynthesis, that we have to study. So you can see on the screen there is aim, ठीक है? aim है यहाँ पर the objective is to show experimentally that the light is necessary for photosynthesis. The theory, ठीक है? फोटोसिंथेसिस क्या है? लाइट एनर्जी आपकी प्लांट पे पड़ रही है और लाइट एनर्जी उसमें जब पड़ती है तो फिर light is the we can say form of energy which chlorophyll can absorb and it gets absorbed by chlorophyll and chemical reactions take place in that, and chemical reaction convert this light energy into the chemical energy of glucose. Okay, so can anybody from you explain this diagram which is shown on the figure? I have Yes, ma'am. Ma'am, here sun is giving light energy to a plant, and carbon dioxide is taken from the environment by the plant, and when light energy, chlorophyll, carbon dioxide, water, with this photosynthesis process occurs, and then it releases oxygen. Good. So what is the equation for photosynthesis if I ask you? 6CO2 plus 6H2O in the presence of sunlight and chlorophyll. It converts into C6H12O6, which is glucose, and 6O2. Okay. 6, yes. Now, what are the three conditions which are necessary or three steps of photosynthesis if you have learned that? What are the three steps of photosynthesis? Energy by chlorophyll. Okay. Conversion of light energy into chemical First of energy. all, activation of chlorophyll occurs there. Activate when light energy fall, and then photolysis happens of water, in which water is broken down into hydrogen and oxygen, and then it converts into ATP and NADPH. Okay. And reduction then happen reduction, and then finally in the dark reaction and light reaction make photosynthesis. Okay. So this is the there are three steps. So you should know the requirements. What are the requirements? There is a theory which is given in the screen. Photosynthesis एक ऐसी process है जो light energy को chemical energy में बदल रही है. इस energy से light की carbohydrates बनते हैं. ठीक है, फोटोसिंथेसिस नेम ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, फोटोस जिसमें लाइट है, सिंथेसिस जिसमें पुटिंग टुगेदर है. ऑक्सीजन इज आल्सो रिलीज्ड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट. लाइट इज अ मेजर फैक्टर फॉर फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस. बाय डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट वी नीड टू प्रूव दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को करके हम ये समझेंगे कि लाइट इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है कि कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड, water, carbohydrate, light energy is absorbed by chlorophyll. A photosynthetic pigment of the plant by layer containing carbon dioxide and oxygen enters the plant through the leaves, stomata. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे एंटर हो रही है बच्चों? How the carbon dioxide is entered? Stomata. Okay. Yes. Now, what is the water? What about water? Water कैसे enter होता है बच्चों? Then through stem, through roots. Through roots. Okay. We root पे हम पानी डालते हैं तो सब जगह पहुंचता है. और Yes, ma'am.
लाइट कैसे एंटर होती है? हाउ द लाइट एंटर्स? क्लोरोफिल के थ्रू। ओके, क्लोरोफिल के थ्रू लाइट एंटर होती है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है जो आपको बता रहा है कि लाइट जहाँ जहाँ लाइट है वहाँ वहाँ फोटोसिंथेसिस होगी। फिर इक्वेशन दी हुई है आपके सामने इसकी फोटोसिंथेसिस की, 6CO2 6H2O लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज बन रहा है वो और ऑक्सीजन बन रही है। फोटोसिंथेसिस अकर कहाँ होती है? फोटोसिंथेसिस लीव्स में अकर होती है, लिटिल टू नन अकर्स इन स्टेम, और बिल्कुल भी स्टेम में नहीं होती, एंड और कम सी होती है। अगर स्टेम ग्रीन है तो फिर वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, अगर वो वुडी है तो लकड़ी है वहाँ पर तो नहीं होगी। ठीक है, आगे फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को? लाइट इंटेंसिटी, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, टेम्परेचर, ठीक है, ये सब क्या है आपका? दिस इज द कि कितनी परसेंटेज में कंसंट्रेशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की, पता है आपको एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04% है एटमॉस्फेयर में नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड का। टेम्परेचर एक एफिशिएंट एन एफिशिएंट फोटोसिंथेसिस रिक्वायर एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बिटवीन 25 to 35 डिग्री सेल्सियस। water is an essential factor for photosynthesis. The lack of water also leads to a problem of carbon dioxide intake. If the water is scarce, the leaves refuse to open stomata. पानी की कमी से भी लीव स्टोमेटा बंद रहते हैं, जिससे भी अगर स्टोमेटा ही बंद रहेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगी। तो पानी का भी बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, लर्निंग आउटकम्स बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि इस प्रैक्टिकल को करने के बाद आपको क्या सीखने में मिलेगा या आप क्या सीख पाओगे। स्टूडेंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट दैट लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। पहली बात तो आपको ये समझ में आएगा कि लाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, स्टूडेंट अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ फोटोसिंथेसिस इन द फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट को ये भी समझ में आएगा कि प्रिंसिपल क्या है फोटोसिंथेसिस का और फैक्टर्स क्या क्या हैं जो फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डू द एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेटली। ठीक है, ये भी समझ में आएगा उनको स्टूडेंट्स को कि एक्सपेरिमेंट मोर एक्यूरेटली या रियल लैब में वंस दे अंडरस्टैंड द स्टेप्स थ्रू एनिमेशन। जब एनिमेशन और स्टिमुलेशन से स्टूडेंट्स इसको करेंगे तो उनको समझ में आएगा एक्चुअली में रियल लाइफ सिचुएशन क्या होती है। तो अब हम एक एनिमेशन देख लेते हैं प्रैक्टिकल कैसे होता है। ठीक है, सबको स्क्रीन शेयर हो रही है जो भी बच्चे देख रहे हैं। फोटोसिंथेसिस में हम ये पढ़ रहे हैं कि लाइट नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। आई वांट एवरी वन ऑफ यू टू फर्स्ट शो मी योर वीडियो। सब बच्चे वीडियो ऑन करके रखेंगे ताकि मैं देखूं आप लोग
पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के मूड में हैं, नहीं है? तो एक बार आप लोग सारे अपनी वीडियो ऑन करो। हम ये समझ रहे हैं बच्चों कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट जरूरी है। ये प्रैक्टिकल हमें ये बताता है कि लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। वी विल स्टडी दिस। ओके, सो आई एम शेयरिंग माय वीडियो एनिमेशन विद यू, प्लीज वॉच इट। Importance of light in photosynthesis. To do the experiment, we require a potted plant, boiling tube, iodine, petri dish, methylated spirit or alcohol, distilled water, forceps, Bunsen burner. Take a healthy potted plant and keep it for 2 to 3 days in a dark place. Take 2 uniform pieces of black paper. Select a healthy de-starched leaf and cover a portion of the leaf on both sides by using. सो पॉटेड प्लांट लेना है हमें, एक हेल्दी प्लांट लेना है पॉटेड प्लांट, प्लस हमें उसको डी स्टार्च करना है। पहले बोला है ना अभी इन्होंने कि हमें एक डी स्टार्च्ड लीफ लेना है। अब डी स्टार्च्ड लीफ क्या होता है? अगर हम किसी प्लांट को 2-3 दिन तक अंधेरे कमरे में बंद कर दें तो उसका क्या होगा? उसका ऑलरेडी जो स्टार्च उसके अंदर है वो प्लांट कंज्यूम कर लेगा। द प्लांट विल कंज्यूम द स्टार्च विच इज ऑलरेडी मेड इन दैट, बिकॉज प्लांट जब रोशनी में होता है हर दिन, जितने घंटे वो रोशनी में रहता है उतने घंटे वो फूड बनाता है। तो फूड उसके अंदर हो, स्टार्च उसके अंदर हो, तो वो पुराना स्टार्च होगा। अगर हम उससे स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हम अपनी नई कंडीशंस के हिसाब से उसमें फोटोसिंथेसिस हुई है कि नहीं है कैसे पता कर सकते हैं? तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुराना स्टार्च उसका खत्म करना पड़ेगा। तो दैट इज व्हाई वी हैव टू कीप इट इन डार्क फॉर 1 कंप्लीट डे। 1 डे हमें उसे कंप्लीट डे के लिए पॉटेड प्लांट को अंधेरे में रखना पड़ता है ताकि वो डी स्टार्च हो जाए। और फिर उसके ऊपर हम इस तरह का ब्लैक पेपर लगाते हैं जो आप स्क्रीन में देख रहे हो। ब्लैक पेपर लगाने से उसका कुछ पोर्शन उसके क्लोरोफिल का छुप जाता है और कुछ पोर्शन उसका उघड़ा रहता है, ओपन रहता है, एक्सपोज रहता है लाइट के। तो जो पोर्शन उसका लाइट से एक्सपोज रहता है उस पोर्शन में हम देखेंगे, जब अब उसको 6 घंटे के लिए रोशनी में रखेंगे, डिस्टार्च्ड प्लांट को 6 घंटे की रोशनी में रखेंगे, तो जो एक्सपोज पोर्शन है, ब्लैक पेपर से अनकवर्ड पोर्शन है, वो लाइट से एक्सपोज होगा और वहां पर स्टार्च बनेगा। जो हिडन पोर्शन है वहां पे कोई स्टार्च नहीं बनेगा, वहां नेगेटिव टेस्ट आएगा। तो ये आप इस वीडियो में देखेंगे। These 2 uniform pieces of black paper. Now, place the potted plant in sunlight for the whole day. Pluck the covered leaf in the late afternoon. Remove the black paper from the leaf. Take a beaker containing distilled water, place it over a Bunsen burner and boil it. Put the experimental leaf into the boiling water and boil for 5 to 10 minutes till the leaf becomes soft. Remove the beaker from the tripod stand and allow it to cool for some time. Take another beaker containing distilled water and place it over a Bunsen burner and boil it to about 60 degrees. Take the bottle containing alcohol and pour it into a clean boiling tube. Place the boiling tube into the beaker containing water that is boiling. Take the leaf from the beaker using a forceps. Place the leaf into the boiling tube containing alcohol. Keep the boiling tube in the beaker till the leaf becomes colorless. Take the leaf from the boiling tube using forceps. Dip the leaf in a beaker containing distilled water and wash it.
तो आपने देखा कि किस तरीके से बॉइलिंग ट्यूब में बॉइलिंग ट्यूब में अल्कोहल लेकर पत्ते को उसमें गर्म किया और बीकर में, मतलब डायरेक्ट हीट नहीं करी क्योंकि अल्कोहल हीट से फायर कैच कर लेती है, वॉलेटाइल है और इन्फ्लेमेबल है अल्कोहल, तो इसीलिए अल्कोहल को बॉइलिंग ट्यूब में रखा है और उस बॉइलिंग ट्यूब को गर्म पानी में रखा था और तब क्लोरोफिल रिलीज किया था पत्ते का, ठीक है। और फिर अब ये स्टार्च टेस्ट करेंगे आयोडीन से। Take iodine solution using a dropper. Drop a few drops of iodine solution on the leaf. तो आप देख रहे हो आयोडीन डालने के बाद किस तरीके से जहाँ पर एक्सपोज्ड हुआ है, जहाँ पर लाइट एक्सपोज हुई है वहां पर तो क्या है, डार्क रीजन बना है यानी ब्लू ब्लैक कलर आया है, और जहाँ पर लाइट एक्सपोज नहीं है वहां पर व्हाइट या फिर ग्रीन कलर पत्ते का ही कलर आया, वहां कोई स्टार्च नहीं बना क्योंकि देयर इज नो स्टार्च देयर विच वाज कवर्ड पोर्शन, ब्लैक पेपर से जो कवर्ड था। तो इससे ये पता चलता है लाइट इज नेसेसरी एंड क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। Observation. After iodine treatment, the color of the exposed portion of the leaf turns blue-black, while the unexposed portion of the leaf turns pale yellow. Conclusion. Starch is one of the end products of photosynthesis and turns blue-black on contact with iodine. The exposed portion of the leaf that turns blue-black shows photosynthetic activity, while the unexposed portion shows the reverse. This indicates that light is essential for photosynthesis. So अब हमने एनिमेशन देख लिया, we will see the video also how in actual lab condition you do, because आप अब वीडियो से ये देखेंगे कि एक्चुअली में लैब में कैसे करते हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी के बेसिस पे आप वाइवा वॉइस करेंगे। So my screen is visible to everyone? Is the Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay? Importance of light in photosynthesis. Photosynthesis is the process of converting light energy from the sun into chemical energy through a complex biochemical reaction. The process of photosynthesis takes place in the chloroplast, specifically called chlorophyll, the green pigment involved in photosynthesis. In this process, inorganic compounds such as water and carbon dioxide are converted into organic materials such as glucose. Molecules of glucose later combine with each other to form more complex carbohydrates such as starch and cellulose. To do the experiment, we require a healthy potted plant, boiling tube, iodine, petri dish, methylated spirit or alcohol, distilled water, forceps, and a hot plate. Procedure. Take a healthy potted plant and keep it for 2 to 3 days in a dark place. Remove the plant from the dark room. Take 2 uniform pieces of black paper and paper clips. Select a healthy de-starched leaf and cover a portion of the leaf on both sides by using these 2 uniform pieces of black paper. Fix the 2 ends of the black paper using paper clips. Now, place the potted plant in sunlight for the whole day. Pluck the covered leaf in the late afternoon. Remove the black So आपने paper देखा from the leaf. कि किस तरीके से कवर कर रहे हैं डी स्टार्च लीफ को। पहले प्लांट को 2 दिन तक अंधेरे में रखा और फिर उससे डी स्टार्च हो गया, उसका ऑलरेडी प्रेजेंट स्टार्च हट गया, फिर उसे ब्लैक पेपर से पेपर क्लिप्स की मदद से कवर कर दिया उसका कुछ पोर्शन, फिर उसे कुछ घंटों के लिए आफ्टरनून तक रोशनी में रखा और अब ये इससे डीकलराइज करेंगे, मतलब इसका क्लोरोफिल हटाएंगे अल्कोहल में इसे बॉईल करके और फिर लास्ट में इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे। Take a beaker containing distilled water and place it over a hot plate and boil it. Put the experimental leaf into the boiling water and boil for 5 to 10 minutes till the leaf becomes soft.
Remove the beaker from the hot plate and allow it to cool for some time. Take another beaker containing distilled water and place it over a hot plate and boil it at 60 degrees centigrade. Take the bottle containing alcohol and pour it into a clean boiling tube. Place the boiling tube into the beaker containing water that is boiling. Take the leaf from the beaker using the forceps. Place the leaf into the boiling tube containing alcohol. Keep the boiling tube in the beaker till the leaf becomes colorless. So आप देख रहे हो कि लीफ को अल्कोहल में रखा है और इस टेस्ट ट्यूब को बीकर में रखा है और बीकर गर्म हो रहा है. बीकर इज बॉइलिंग. ठीक है. तो बॉइलिंग वाटर में इनडायरेक्ट हीट लग रही है टेस्ट ट्यूब को, जिससे धीरे धीरे जो अल्कोहल है वो ग्रीन होती जा रही है, यानी कि क्लोरोफिल निकले जा रहा है. अल्कोहल डिसॉल्व कर ले रहा है पूरे क्लोरोफिल को. Take the leaf from the boiling tube using forceps. Dip the leaf in the beaker containing distilled water and wash it. Place the leaf in a petri dish. Take iodine solution using a dropper. Drop a few drops of iodine solution on the leaf. After iodine treatment, the color of the exposed portion of the leaf turns blue-black and the unexposed portion of the leaf turns a pale yellow. Starch is one of the end products of photosynthesis and turns blue-black on contact with iodine. The exposed portion of the leaf that turned blue-black shows photosynthetic activity, while the unexposed portion shows the reverse. This indicates that light is essential for photosynthesis. Precautions. The experimental leaf should be healthy. Clip the black paper carefully to the leaf so that the covered portion does not receive any sunlight. After boiling the leaf in alcohol, it should be washed in water. तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का पूरा एक्टिविटी समझाया है. अब मैं आपको एक लिंक भेजूंगी जो कि आपका इसका वाइवा वॉइस का लिंक होगा. सारे बच्चों को उस वाइवा वॉइस को अटेम्प्ट करके पता चलेगा कि आपको क्या नॉलेज आई इससे. ठीक है. और मुझे स्क्रीनशॉट्स शेयर करना. So you have to share screenshots with me of the Viva voice. Okay. So Viva voice के questions हैं यहाँ पर. आप यहाँ MCQ क्वेश्चन देख रहे हो. कुछ क्वेश्चंस हैं तो ये लिंक मैं आपको शेयर कर दे रही हूँ अभी क्लासेस में. And attempt this questions. And you can share if other section students are also here. So if not to me, अगर आप मुझे शेयर नहीं करोगे तो आप सिद्धार्थ सर को या फिर प्रशांत सर को उनको भी शेयर कर सकते हो. उससे बस ये पता चलना चाहिए कि आपने अटेम्प्ट किया है, that you have attempted. ओके. और सिमुलेटर में भी देख सकते हैं हम किस तरीके से आपका सिमुलेटर के थ्रू करते हैं ये एक्टिविटी, कैसे कैसे स्टेप्स हैं. तो स्टार्ट करेंगे हम. देखो यहाँ पर लाइट सोर्स हो रहा है. इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट एक टेबल लैम्प की लाइट इस पौधे पे पड़ रही है और पौधे में से बबल्स निकल रहे हैं क्योंकि वो इन्वर्टेड पानी में रखा हुआ है. ठीक है. तो जब इन्वर्टेड करके पानी में रखा हुआ तो बबल्स निकलते हुए ऊपर जा रहे हैं. वो बबल्स किसके हैं? ऑक्सीजन के. दे आर बबल्स ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है. नंबर्स ऑफ बबल्स फॉर्म 6, यानी कि फोटोसिंथेसिस करी है लाइट की प्रेजेंस में इस पत्ते ने और फिर बबल्स रिलीज हुए हैं ऑक्सीजन के. ठीक है. पावर सोर्स अगर हम थोड़ा सा दूर कर दें और अगर दूर कर देंगे और फिर अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्या है, बबल्स कितने रिलीज होंगे ये देखेंगे हम.
बहुत देर में बबल्स रिलीज हो रहे हैं। कैसे रिलीज हो रहे हैं? बहुत देर में एक एक करके बबल्स रिलीज हो रहे हैं। 1 मिनट में कितने बबल्स आए? सिर्फ 3 आए, 1 मिनट 3 सेकेंड्स में। ठीक है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं अगर हम लाइट सोर्स को दूर और पास करते हैं तो क्या चेंज आता है। तो जब हम पास करते हैं तो बबल्स का नंबर जस्ट डबल हो जाता है ना, ऑक्सीजन ज्यादा प्रोड्यूस होती है, यानी कि फोटोसिंथेसिस ज्यादा होती है। ठीक है, this is shown by this simulator experiment and it shows the importance of light. हम स्टॉप कर देते हैं। देखिए 1 मिनट 11 सेकंड में 4 बबल्स बने हैं। ठीक है, सो दिस इज 100 वॉट का। अगर हम 100 वॉट का पावर सोर्स, मैंने 100 वॉट और 50 सेंटीमीटर्स किया, तो अब देखिए कैसे बबल्स आते हैं 1 मिनट में। हम चेक करते हैं 1 मिनट में कैसे बबल्स आते हैं। इसमें ज़्यादा आते हैं, कम आते हैं, कितने आते हैं। फिर मैं स्टॉप कर दूंगी 1 मिनट पे से। तो 1 मिनट 4 सेकेंड में 7 बबल्स आए हैं। अब मैं उसको दूर कर देती हूँ 100 वॉट को। 100 वॉट को दूर करके 1 मिनट में चेक करते हैं कितना सोर्स लाइट का मैंने दूर कर दिया। तो उसको अब क्या कितने बबल्स बनाते हैं? पहले 7 बनाए थे, 5 बनाए हैं। तो अगर लाइट सोर्स दूर होगा तो क्या होगा? कम बबल्स बनेंगे, कम फोटोसिंथेसिस। इज इट क्लियर बच्चों? सबको समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. हमें ये समझ में आया कि लाइट नेसेसरी होती है फोटोसिंथेसिस। लाइट इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो मैं आपको ये लिंक शेयर कर देती हूँ वाइवा वॉइस का, और आप सारे बच्चे इस वाइवा वॉइस को अटेंड करोगे और मुझे सुपर 30 के बच्चे तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजोगे और बाकी दूसरे को भेज सकते हैं अपने अपने साइंस टीचर। ठीक है, क्लियर बच्चों? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am.